Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of computer. Students, in my previous video, I have teach you about the advantage and disadvantages of assembly language or second generation language and introduction of high level language. Students, in this video, I am going to teach you about the features of high level language and fourth generation language. Students, I have told you in my previous video that high level language is very similar to English language because it is made up of English like word and mathematical symbol so that we can understand this language very easily. Let us see the features of high level language. First feature of high level language is it is user friendly language. Students, why this is user friendly language? Because one can understand this language very easily because the use of English like word and mathematical symbol and programming are also very easier in this generation of language. So it is very user friendly language comparing to machine language and assembly language. Second one is it uses English words and mathematical operator which make it easy to understand. Students, it uses English word. इस जनरेशन के लैंग्वेज में हम लोग इंग्लिश वर्ड का यूज़ करते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं जैसे प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन लेस दैन ग्रेटर दैन एक्सपोनेंट एट्सेट्रा, जिस वजह से इसको समझ पाना हम लोग के लिए बहुत ही ईजी होता है. सो इट यूजेज इंग्लिश वर्ड एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स विच मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड. थर्ड वन इज़ इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन मशीन. दिस language is not dependent on machine, it is totally independent of machine. So these are the three features of high level language. Students, now next one is fourth generation language. What is fourth generation language? Students, the fourth generation language are much easier than high level language because it is very closer to human language. Students, we have studied that high level language is closer to English language or any other spoken language, but fourth generation language is very closer to human language. It can understand human language in terms of thinking and conceptualization than any previous generation language. So ये लैंग्वेज जो भी है थिंकिंग के मामले में और कॉन्सेप्टलाइजेशन के मामले में पूरी तरह से ह्यूमन लैंग्वेज के जैसे है कंपेयरिंग टू अदर लैंग्वेजेस लाइक मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ये ऑपरेटिंग सिस्टम से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है. Some examples of fourth generation language are SQL, Focus, Metafont, PostScript, Wave, Gauss, Python and so on. इसके कुछ एग्जाम्पल देखे जाएँ तो SQL, which is full name of SQL is Structure Query Language. Focus, Metafont, PostScript, Wave, Gauss, Python, ये सभी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के हाई स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इस लैंग्वेज को हम लोग मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं. आप इस बात को नोट कर लेंगे. इट इज़ नोटेड दैट फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज़ आल्सो कॉल्ड मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज. नाउ लेट अस सी सम फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. स्टूडेंट्स, features of fourth generation language are: first,
It is more programmer friendly and versatile. Students, this is very programmer friendly, means it has very easier in programming for ones, and versatile because it is very easily to understand and easily to write a program. In these features, it is equally to high level language, but it is more programmer friendly than high level language, and it is also versatile, means very easy for writing program and understanding this language. It require minimum effort from the user. This language require minimum effort from user to writing a program. इस लैंग्वेज में हम लोगों को प्रोग्रामर से मिनिमम एफर्ट में हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं comparing to other language. It enhances programming efficiency with the uses of English-like word and phrase, icons, graphical interface and symbolic representation. इसमें इस लैंग्वेज में हम लोग इसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, इन्हेंस प्रोग्रामिंग इफिशियंसी विद द यूजेस ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड, जब क्योंकि इसमें भी इंग्लिश लाइक वर्ड यूज कर सकते हैं, फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, आइकॉन्स यानी छोटे छोटे आइकॉन जो होते हैं उसको यूज कर सकते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस यानी पिक्चर वगैरह यूज कर सकते हैं, और सिंबल का यूज कर सकते हैं, जिससे इसकी प्रोग्रामिंग इफिशियंसी प्रोग्रामिंग क्षमता बढ़ जाती है. इट प्रोसेसेस हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन. इसकी स्पीड यानी इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड क्या होती है, बहुत ही हाई होती है, बिकॉज इट एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट कंपेयरिंग टू अदर जनरेशन ऑफ लैंग्वेज. द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर डिजाइन टू रिड्यूस ओवरऑल टाइम, एफर्ट एंड कॉस्ट दैट इज incurred ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर. द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर डिज़ाइन, इस लैंग्वेज को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिससे ये ओवरऑल टाइम रिड्यूस कर देता है प्रोग्रामिंग का, एफर्ट भी रिड्यूस कर देता है और कॉस्ट भी रिड्यूस कर देता है, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोगों को क्रिएट करना हो या बनाना हो. तो ये कुछ फीचर्स थे आपके ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. नेक्स्ट वन इज़ फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. व्हाट इज़ फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज? Students, you have learned in the previous classes that fifth generation language are used in artificial intelligence research. इस जनरेशन लैंग्वेज का यूज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में करते हैं, जैसा कि आपने पीछे के क्लासेस में पढ़ा होगा. इस जनरेशन लैंग्वेज का यूज कंप्यूटर को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए किया जाता है. इट्स प्राइमरी गोल इज़ टू एलिमिनेट द नीड ऑफ implementing an algorithm to solve a problem. इस लैंग्वेज का जो प्राइमरी गोल होता है वो होता है इज़ एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एन एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट किया जाए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. स्टेप बाय स्टेप हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. एल्गोरिदम के बारे में आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे. इट इज़ यूज्ड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप या एक उचित प्रक्रिया से एक उचित स्टेप से चलते हुए कंप्लीट करते हैं तो वो आपका एल्गोरिदम होता है. तो इस जनरेशन का यूज़ यही होता है, प्राइमरी गोल यही है कि एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए. It means that unlike the earlier generation of programming language which are designed to build a specific program, it means unlike the earlier generation of programming language, यानी पीछे जो हमने 4 जनरेशन पढ़े हैं उसकी तरह which were designed to build a specific program, the fifth generation language are designed to make the computer solve a given problem on its own without any interference of programmer. जैसे कि पीछे के जनरेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि कंप्यूटर को हम लोग इंस्ट्रक्शन दे करके प्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शन दिए का कुछ नहीं करता है. हम लोगों को इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कंप्यूटर उस इन्फॉर्मेशन को
या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और लास्ट में हमको रिजल्ट दे देता है। सो इस जनरेशन में फिफ्थ जनरेशन का यूज़ होता है कि कंप्यूटर को इस तरह से बनाया जाए ताकि वो खुद से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम ऑन इट्स ओन विदाउट एनी इंटरफ्रेंस ऑफ प्रोग्रामर, यानी किसी प्रोग्रामर के बिना किसी इंटरफ्रेंस के ये उसको सॉल्व कर सके। इट्स अल्टीमेट एम इज़ टू मेक कंप्यूटर बिहेव, थिंक एंड रिएक्ट एज ह्यूमन। इसका अल्टीमेट एम होता है कि कंप्यूटर को पूरी तरह से मेक कंप्यूटर्स बिहेव, थिंक एंड रिएक्ट एज ह्यूमन, कि कंप्यूटर पूरी तरह से बिहेव करे, सोचे और रिएक्ट करे ह्यूमन की तरह। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस लैंग्वेज का यूज हम लोग आज के टाइम में रोबोटिक्स में करते हैं। रोबोट आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में या टीवी पे, जैसे होता क्या है कि रोबोट खुद से अपने फंक्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, खुद से चल सकते हैं, खुद से मुड़ सकते हैं, खुद से सारे काम कर सकते हैं। हमको केवल दूर से ऑर्डर देना होता है। वंस अ प्रोग्रामर dictates how solution should appear by logically specifying constraints and conditions, the computer is then free to search a suitable solution. Once a programmer dictates how the solution should appear by logically specifying constraints and conditions, एक बार प्रोग्रामर जब डिक्टेट कर लेता है कि किस तरह से हाउ द सोल्यूशन शुड अपीयर, किस तरह से सोल्यूशन मिलना चाहिए, बाय लॉजिकली स्पेसिफाइंग कंस्ट्रेंट एंड कंडीशन, कि लॉजिकली हम लोग किसी कंडीशन को अप्लाई करके या सॉल्व करते हुए देन कंप्यूटर इज़ फ्री टू सर्च अ सूटेबल सोल्यूशन। तो कंप्यूटर उसको उसी लॉजिक का यूज़ करते हुए किसी भी सोल्यूशन को फाइंड करता है। A considerable research has gone into development of 5GL in the 1980s and 1920. कंप्यूटर के फील्ड में जो भी डेवलपमेंट हुआ है 5GL में वो 1980 से लेकर के 1990 के बीच हुआ है। फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर स्टिल इन अ डेवलपमेंट फेज, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है फिफ्थ जनरेशन ये आज भी डेवलपमेंट के स्टेट में है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज लीड द फ्यूचर, और इस जनरेशन लैंग्वेज को फ्यूचर की जनरेशन लैंग्वेज भी माना जाता है, क्योंकि आने वाला समय जो होगा वो पूरी तरह से रोबोटिक्स होगा। मीन्स हम लोग बैठे बैठे कंप्यूटर को ऑर्डर देंगे और कंप्यूटर वो काम खुद से करके अपना लॉजिक यूज़ करते हुए, अपना सेंस यूज़ करते हुए वो परफॉर्म कर देगा। तो कह सकते हैं कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी की ये जनरेशन है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। सम एग्जांपल्स ऑफ 5GL आर, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल्स देखा जाए तो उसमें प्रोलॉग होता है, ये भी एक 5 जनरेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। OPS 5 होता है और मरकरी जो होता है, ये तीनों फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। सो स्टूडेंट्स, let us describe fourth generation language and fifth generation language in short. The fourth generation language were developed to get closer to human language. आपको बताया गया है कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या होता है, ये ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोजर होता है इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग एंड कॉन्सेप्टुलाइजेशन। थिंकिंग के टर्म में या कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है उस टर्म में भी ये पिछले अपने सारे जनरेशन लैंग्वेज से बेटर होता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस लैंग्वेज में आपको बताया गया है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम से इंडिपेंडेंट होता है, यानी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के भी हम लोग इसमें वर्क कर सकते हैं। इसके फीचर्स आपको बताए गए थे। इट इज़ मोर प्रोग्रामर फ्रेंडली एंड वर्साटाइल, ये बहुत ही प्रोग्रामर फ्रेंडली और वर्साटाइल होता है। इट रिक्वायर मिनिमम एफर्ट फ्रॉम यूजर से हम लोगों को मिनिमम एफर्ट कंप्यूटर को देना पड़ता है और हमको रिजल्ट मिल जाता है। इट इन्हेंस प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी, इससे हम लोग प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग इंग्लिश लाइक वर्ड्स एंड फ्रेज, जिसमें हम लोग इंग्लिश लाइक वर्ड और फ्रेज का यूज कर सकते हैं, आइकॉन्स का यूज कर सकते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस का यूज कर सकते हैं और सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन
भी कर सकते हैं। इट प्रोसेसेस हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, इसकी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन जो होती है बहुत ही फास्ट होती है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर डिजाइन टू रिड्यूस ओवरऑल टाइम एफर्ट एंड कॉस्ट दैट इज अनक्योर्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। और इस जनरेशन लैंग्वेज का एक लक्ष्य ऐसा भी होता है कि ओवरऑल टाइम रिड्यूस कर दिया जाए, एफर्ट भी रिड्यूस हो जाता है और कॉस्ट भी किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में रिड्यूस हो जाता है, जो पिछले जनरेशन लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा होता था। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आपको बताया गया है, इसका प्राइमरी गोल होता है कि कंप्यूटर को इस तरह से बना देना कि वो खुद से डिसीजन ले पाए, खुद से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, या यूँ कह सकते हैं कि वो कोई भी लॉजिक खुद से लॉजिक यूज़ करके किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व कर दे। और कहा जाता है कि फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी जो है वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, और फ्यूचर में आप इस टेक्नोलॉजी के आप बहुत सारे कंप्यूटर पा सकते हैं। और इसके एग्जांपल्स जो हैं वो प्रोलॉग है, OPS5 है और मरकरी है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फ्रॉम माय टुडेज वीडियो। In my next video, we will discuss more about the topic computer languages. Until then, have a great day.